5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off. Press 5 seconds. Lift off normal. आसमान की तरफ उठता हुआ PSLV-C43 31 पतंगों को अपने साथ ले जाके अंतरिक्ष में अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। बादलों के पार हमसे दूर जाता हुआ ये प्रमोचनयान निश्चित रूप से अपनी गर्जना के साथ ये संदेश ये भारत समूचे विश्व के साथ मिलकर एक शांति का संदेश मानवता के लिए समाज के लिए फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल ताकि शांति स्थापित हो सके। Range Operations Director on your screen announcing that the first stage performance is normal. We are 1 minute into the flight and our powerful booster, the S139, is performing as designed and as per the mission plan. You can see the red line is the planned trajectory and the green dot is the trajectory achieved, just one over other, and everything goes as per planned. We are about 75 seconds into the launch and the first event to happen is around 1 minute 10 seconds into launch. The first stage will complete its job and shut off and pass on the vehicle movement or vehicle thrust to the second stage. We are very close to the first stage separation now. जी हाँ, दो ग्राफ आप देख पा रहे होंगे। पहला ग्राफ जो बाएं तरफ देख रहे हैं उसमें परास और ऊंचाई की अध्ययन किया गया है, जबकि दूसरा जो ग्राफ था उसमें हम शार से कितनी दूर जा चुके हैं। प्रथम चरण अलग हो चुका है और द्वितीय चरण प्रज्वलित हो चुका है। निष्पादन पूरी तरह से सामान्य। हम इस समय 120 सेकंड का समय व्यतीत करके 1.4 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर चुके हैं और शार से लगभग 50 किलोमीटर दूर जा चुके हैं। ऊंचाई 68 किलोमीटर की और अजीमुथ 141.8 डिग्री। There are small ullage rockets which provide positive thrust to the vehicle during the transition from the solid to liquid stage, and the ullage rocket separations have also been achieved successfully. Now our second stage L40 engine is performing. This has a loading of 40 tons and hence the name PL40. Second stage performance normal. You heard the announcement from Range Operations Director. Second stage is normal. PS2, the second stage, will burn for a total duration of 150 seconds, and we are now about 3 minutes into the launch. So in about 50 seconds from now, the second stage payload fairing will separated. complete its job. A very important event has happened. The heat shield has separated and the closed loop guidance which guides the vehicle at every instant till the injection has been initiated. जी हाँ, द्वितीय चरण प्रज्वलन के दौरान 115.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊष्मीय सुरक्षा कवच जिसे पेलोड फेयरिंग भी कहा जाता है उसे पृथक कर दिया गया है सुरक्षा पूर्वक, और उस समय वेग का मान करीब 2.228 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा ये चरण अब ये द्वितीय चरण जो है वो यान को 204.7 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा और पृथककरण के समय जड़ती वेग जो है वो करीब 3.6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाता है। इसका कुल प्रज्वलन काल जो होगा करीब 152 सेकंड का होगा और जो क्लोज विषुणुजित तरह से होंगी। जैसा कि आप अपने ग्राफ पे देख पाते हैं, जो लाल रेखा दिखाई पड़ती है वो बेसिकली कर्व में वो, हाँ जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो ये कर्व दर्शाता है कि ये हमारा अनुमानित पथ है और उस पे जो ग्रीन चमकता हुआ बिंदु है वो अवलोकित पथ है जो अब धीरे धीरे एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। हम बहुत ही नजदीक एक महत्वपूर्ण क्षण के जहां पे तृतीय चरण प्रज्वलित होना है, उसके पहले द्वितीय चरण सेपरेट होना है जो हो चुका है 263.64 के। ये पोंगीनान जी है, रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, जो आपके सामने उद्घोषणा कर रहे हैं। The third stage is now functioning. This is a high performance solid motor using composite motor case, and it is a very efficient stage, giving a specific impulse of 295 seconds and with a propellant loading of 7.7 tons. The third stage will take us to an altitude of about 476 kilometers, whereas right now the altitude is about 250 kilometers.
So we are going to gain altitude during this stage, and by the time this stage will separate, we will be at an altitude of 476 kilometers. The velocity at PS3 separation will be 5.4 kilometers per second. Now we have climbed to an altitude of 280 kilometers, and a range covered from Sriharikota is around 550 kilometers. जी हाँ, इस समय हम करीब करीब शार से 570 किलोमीटर दूर जा चुके हैं और ऊंचाई जो प्राप्त कर चुके हैं वो करीब करीब 300 किलोमीटर की है। 345 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके। मिशन अभियान नियंत्रण केंद्र के अंदर का विहंगम दृश्य न केवल निदेशक महोदय बल्कि वरिष्ठ वैज्ञानिक बड़े ध्यान मग्न होकर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए इस समय जी हाँ, रेंज ऑपरेशन निदेशक ने सामान्य निष्पादन की घोषणा की। इस समय हम करीब करीब तृतीय चरण के निष्पादन की समीक्षा कर रहे हैं। थर्ड स्टेज एक्शन कंप्लीटेड। जी हाँ, कोस्टिंग फेज। हाँ, ये कोस्टिंग पीरियड या जिसे पूर्व निशक्त समय कहा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जो आप हमेशा सुनते होंगे हर PSLV के प्रक्षेपण के समय तृतीय चरण के ज्वलन के पश्चात और अंतिम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के पूर्व का जो समय होता है वो करीब 150 से 200-230 सेकंड का होता है, जिसमें करीब करीब 10.4 सेकंड PS3 के पृथक्करण के बाद का भी होता है। उड़ान अनुक्रम का निर्धारण प्राथमिक रूप से अभियान आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ताकि लक्ष्य की स्थितियों को इष्टतम रूप से प्राप्त किया जा सके। उड़ान के इस निशक्त समय के दौरान रॉकेट मोटरों को बंद कर दिया जाता है तथा निशक्त समय के अंतिम क्षणों में चतुर्थ चरण को निर्धारित समय के बाद प्रज्वलित कर दिया जाता है। ये दो पूर्व इसरो के चेयरमैन श्री किरण कुमार श्री राधाकृष्णन जी और साथ में पूर्व निदेशक VSSC के श्री BN सुरेश जी को आपने देखा। In about 45 seconds, we will see that the third stage will be separated, and 10 seconds later, the fourth stage will be ignited. We are following the intended trajectory very closely, and we normally plan a coast depending upon the final injection conditions. Our PSLV has this versatility in which the coast period, that is the non